my lovely children. Welcome to your English class. This is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. So, children, today we are going to start our new poem, that is, How Many Grains of Your Roots and Wings. Alright? Yes. The name of the poem is How Many Grains. Alright? Yes. So, let's start the poem. At first, we will recite the poem and then I will do the explanation. Fine? Okay. This is the poem which is written by Chitra Padmanabhan. You can see at the end of the poem the name is written. See here, Chitra Padmanabhan. Oh, alright? Yes, she is a female poet and she has written so many poems for the children. Alright? Yeah. And you know what? One more thing, she is an Indian poet. She belongs to India. Belonged to India because she is no anymore. She is dead. That's why we will say she belonged to India. Alright? Yeah. So today we will recite this poem which is given here. So let's move to the poem. See, Acha, before starting the poem, children, let me ask you, do you know how many there are so many shades of green color? Green color, yeah. The name is green color, okay? But you know what? There are so many shades, there are so many varieties of green color. They may be light green, dark green, pale green and so on. Alright. जो ग्रीन कलर होता है ना वो सिर्फ एक नहीं होते, एक जैसे एक कलर नहीं होता ग्रीन का, उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं. दे आर हैविंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, सच एज लाइट ग्रीन होती है ना, इस तरह से डार्क ग्रीन एंड ऑल. तो आप वेन एवर यू गो टू द पार्क, वेन एवर यू गो टू द नियर द फॉरेस्ट, और यू मे से यू कैन सी इट और ऑन योर सेल्फ आल्सो. आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हो. पार्क अगर फॉरेस्ट नहीं गए हो या नहीं जाना चाहते हो तो अपने चारों तरफ ही अभी बैठे बैठे आप देख सकते हो कि आपके चारों ओर कितने जो भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या है, बुशेज़ होंगे. तो उनमें आप देखना कि देर आर हैविंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन. ग्रीन तो होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हाँ जो भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, बट दे विल बी हैविंग डिफरेंट शेड्स. ऑलराइट. कुछ अलग ग्रीन, कुछ प्लांट्स जो है वो दूसरे ग्रीन कलर के हो रहे हैं, कुछ जो प्लांट्स है वो ट्रीज़ हैं वो दूसरे ग्रीन होंगे. ग्रासेस भी क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं लाइट हो जाते हैं, कुछ डार्क हो जाते हैं, है ना. और जैसे जैसे ये जो प्लांट होते हैं, जब आप देखना व्हेन देयर विल बी प्लांट, जब ये छोटे पौधे होते हैं देन दे विल बी ऑफ लाइट कलर, एंड व्हेन दे बिकम ट्री, व्हेन दे ग्रोन अप एज अ ट्री, जब वो बड़े होकर ट्री हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, देन दे विल बी चेंज इनटू डार्क ग्रीन. उनके जो लीव्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, डार्क ग्रीन में चेंज हो जाते हैं. राइट. हैव यू सीन द चेंजेस? You would have seen the changes, but you haven't noticed or observed it. So now, from now onwards, now you will notice it. And okay, yeah, and you should observe it also. Now let's recite the poem. How many greens are there in the park? Can we count them one by one? There is the light green of the tender little grass. I would like this green for the walls of my house. There is the darker green of the older plants that have flowered for many years. I would like to have them as friends for the numerous stories that they can tell. Now coming to the next stanza, that is the third stanza. And there is the darkest green of them all, in trees majestic and strong. They hold up the sky and protect the earth. You see, they are the oldest of them all. They hold the wind in their boughs, offer homes to all kinds of birds, call the rain for welcome showers. I would like them to be my guardians. By Chitra Padmanabhan. So we have done the recitation here. Alright. Now I will explain the poem. Come to the first stanza. The word stanza I have mentioned here. Can you tell me what is this? Yes, in the story, as we are having the paragraph, right? In the same way, in the poem, we are having stanza. Alright. See how many stanzas are there? Let me count it. This is your first stanza. Okay. This is your second stanza. Fine. Now coming to the next. See, this is your third stanza. Fine. This is your fourth stanza. And the last, this is your fifth stanza. Alright. So you can say there are 5 stanzas in this poem. Alright. Yeah. So you have known what is stanza. Fine. Now let me explain the poem. See, here
The poet has expressed her feelings through a boy. Okay, as you can see in the picture, there is a picture of boy who is in the park and he is observing the shades of green color. Okay, he is observing the many varieties of green color. As you can see in the picture here, see, this is a boy and he is standing in the park, right? Yeah, and he is observing the plants and trees and their color. Fine, their colors, their shades, you can say. Fine. So here the poet is saying that how many greens are there in the park, can we count them one by one? Here the poet is saying that there are so many varieties of green color, there are so many shades of green color, but can we count them? No, because some of them are like that we can't tell the name of them, of what they are, of which color they are, of which shade, we can't tell their name also. Okay, so here the poet is asking. Okay, now in the next stanza she is telling that there is a light green of the tender little grass, I would like this green for the walls of my house. Have you seen the soft grass which has just grown up? Then that will be of light green color. जो ग्रास जो तुरंत ही अभी मतलब कि जो न्यू होते हैं, जो सॉफ्ट वाले ग्रीन जो ग्रास होते हैं, वो क्या होता है, दैट विल बी ऑफ लाइट ग्रीन कलर. और वही ग्रास अगर जब ओल्ड हो जाते हैं, जो काफ़ी टाइम के बाद आप उसे देखोगे, दैट विल बी चेंज इनटू डार्क ग्रीन कलर. वो क्या हो जाते हैं, डार्क ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं. सो हेयर द पोएट इज सेइंग दैट जो लाइट ग्रीन कलर होती है, पोएट कौन सी ग्रीन की बात कर रहे हैं, जब ग्रास सॉफ्ट होती है, जब ग्रास जब ग्रो जिस वक्त उस होते दैट दैट टाइम जो कलर होती है ग्रास की लाइट ग्रीन, उसे पोएट ने क्या कहा है कि आई वुड लाइक दिस ग्रीन फॉर द वॉल्स ऑफ माई हाउस. जैसे हम अपने घरों में पेंटिंग करवाते हैं तो हमें क्या, हम शेड्स चूज़ करते हैं ना, विच कलर डू वी वांट. अगर हमें ग्रीन चाहिए तो ग्रीन में कौन सी चाहिए, है ना. देयर विल बी सो मेनी वराइटीज़. एक पैरोट ग्रीन होते हैं, एक डार्क ग्रीन होते हैं, इस तरह से देर आर सो मेनी वराइटीज़ यू कैन से, है ना. एक पीच शेड होती है ग्रीन की. तो इस तरह से हम चूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ जो है ना, हेयर द पोएट इज सेइंग दैट आई वांट द लाइट ग्रीन विच इज़ ऑफ सॉफ्ट ग्रास. जैसे जो ग्रास की जो ग्रीन कलर होती है, मुझे वो वाली ग्रीन चाहिए. आई वुड लाइक टू पेंट माई वॉल्स विथ दैट ग्रीन कलर. ओके, मुझे वो वाली जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर, मुझे उससे अपने वॉल्स को पेंट करनी है. आई वॉन्ट दैट कलर, दैट शेड यू कैन से. फाइन. ओके, now in the next stanza, there is a darker green of the older plants, they have flowered for many years. Just now I have told you that when the plant grown up as a tree, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब when they become older, then they change into dark green, right. जब वो बहुत सालों तक जब फ्लावर दे चुके होते हैं, फ्रूट्स दे चुके होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, देन दे यूज टू चेंज इनटू डार्क ग्रीन कलर. जो उनकी लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन हो जाती है. Here the same thing is mentioned here. I would like to have them as friends for the numerous stories that they can tell. See, जैसे हम हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं कि हमें जब स्टोरी सुनना होता है तो हम किससे सुनना पसंद करते हैं, दादा दादी नाना नानी, राइट, ग्रैंड मैन ग्रैंड पा से. बिकॉज दे आर ओल्ड, दे आर हैविंग सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ, दे हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस, जिनके बेसिस पर वो हमें क्या करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं. जो ज़्यादा ओल्डर हो जाते हैं उनके पास क्या होती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है ना. उन्होंने जो अपनी लाइफ जी है वो हमसे ज़्यादा जिया है, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली हमारे से. तो उनके पास स्टोरीज़ की भी कलेक्शंस बहुत सारी होगी, राइट. उन्होंने बहुत सारी जनरेशन देखी अपने बचपन के. फिर जो आपके फादर, अच्छा, फिर वो जब बड़े हुए तो उस वक्त वो उनकी जो जनरेशन हुई, वो जब उनके बच्चे हुए, आपके दादा दादी या नाना ने जो भी हैं, जब आपके फादर का जो जनरेशन है वो उन्होंने वो पूरा ऑब्जर्व किया है, फिर अब वो आपकी जनरेशन को देख रहे हैं. इट मीन्स व्हाट, दे हैव पास्ड विद सो मेनी जनरेशंस ना. सो दैट्स वाई दे आर हैविंग सो मेनी स्टोरीज, दैट्स वाई दे आर हैविंग सो मेनी एक्सपीरियंसेस, राइट. इसलिए हम उनसे स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं. स्टोरीज तो और लोग भी सुना सकते हैं स्टोरीज पढ़कर, बट जो हमारे पहले के लोग थे ना, वो क्या करते थे ना, वो अपनी रियल स्टोरी बहुत कुछ सुनाते थे, राइट. ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते थे. तो यहाँ ऐसे ही कहा गया है, पोएट ने कहा है कि मैं क्या करूँगी, जो ट्रीज़ है वो जो ओल्ड हो चुके हैं, देन आई वुड लाइक टू हैव देम एज फ्रेंड्स एंड फॉर व्हाट, फॉर the numerous stories that they can tell. They have become older, so they will be having so many stories, as I've already given the example of your grandpa and grandma, right. जैसे grandpa and grandma का मैंने example दिया कि उनके पास stories बहुत सारी होंगी. In the same way the older plants will be also having so many stories. So ये जो poet है वो उनके friend बनना चाहते हैं. Fine.
Now coming to the next paragraph, and there is the darkest green of them all, in trees majestic and strong, they hold up the sky and protect the earth. You see, they are the oldest of them all. और जब जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो वो आप देखना पहले क्या होता है लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा डार्क होती है एंड देन फिर डार्केस्ट हो जाती है बिल्कुल। तो ये जो शेड होती है ना, उससे यहाँ पोइट ने कहा है ना कि जब वो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, एकदम बहुत बड़े ट्रीज बन जाते हैं, बहुत बड़े वाले ट्रीज जब हो जाते हैं वो काफ़ी जब पुराने वाले, तो वो क्या होता है डार्केस्ट ग्रीन। आप यहाँ नोटिस करना, हेयर द पोइट हैज़ मेंशन्ड डार्कर ग्रीन, राइट, एंड हेयर डार्केस्ट ग्रीन, मतलब कि इट मीन्स व्हाट, हेयर द पोइट इज कंपेयरिंग दिस कलर्स ना, दिस शेड्स, द शेड्स ऑफ ग्रीन कलर। डार्कर मीन्स व्हाट, मतलब कि पहले डार्केस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा वाला ग्रीन, ऑल राइट। हाँ, डार्कर मीन्स उससे एक शेड कम, ठीक है, या ओके। एंड देन द हेयर द पोइट इज सेइंग दैट ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये जो वो क्या है, व्हाट दे डू, दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। वो क्या करते हैं, मतलब हम कहते हैं ना आसमान को छू जाना, इन द सेम वे, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ मीन्स व्हाट, दे यूज टू ग्रास द सोयल, जो वो सोयल को, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। हेयर द पोइट इज सेइंग दे आर प्रोटेक्टिंग द अर्थ। यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल। और ये क्या होते हैं, आपने सुना है जो जितने ट्रीज़ पुराने होते हैं ना, उनकी जैसे जैसे ट्रीज़ बड़े होते हैं ना, उनकी क्या होती है, जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जाती है और वो उतना स्प्रेड होते जाते हैं। अगर आप एक प्लांट और एक ट्रीज़ में कंपैरिजन करते हो तो प्लांट का क्या रूट्स आप देखे हो उतने स्ट्रांग होते हैं नहीं ना, बट जो ओल्डर ट्रीज़ होते हैं, जो बहुत पुराने ट्रीज़ होते हैं, उनके क्या होते हैं, रूट्स जो है ना स्ट्रांग होते हैं। दैट्स वाई हियर द पोएट इज सेइंग दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल एंड दे आर द प्रोटेक्टिंग द अर्थ, ऑल राइट। उनके रूट्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं एंड देन दे यूज टू प्रोटेक्ट द अर्थ। जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अर्थ को, क्योंकि वो उतनी मिट्टियों को पकड़ नहीं पाएंगे ना, जो सॉइल होती है उनको उतना अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे जितना इन कंपेरिजन टू द ट्रीज, राइट, या। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, दे होल्ड द विंड इन देयर बoughs, offer homes to all kinds of birds. Here the meaning of boughs is branches, all right, branches। व्हाट दे यूज टू डू, द ट्रीज क्या करते हैं ना, वो अपने जो ब्रांचेज उससे क्या करते हैं, एयर को होल्ड करते हैं। इट मीन्स व्हाट, वेन एवर दे यूज टू, जैसे आप देखना कि जब पेड़ हिलते हैं, उनकी जो ब्रांचेस हिलती है, देन यू यूज टू गेट एयर ना, तब आपको विंड मिलती है। आप उस यू यूज टू ऑब्जर्व द विंड, आपको दिखता है कि विंड चल रही है, राइट। तो हेयर दैट इज द सेम थिंग इज मैंशनड हेयर। जो ब्रांचेज है उन्होंने क्या कर रखा है, दे हैव होल्ड द विंड, ऑलराइट। एंड देन आपको ये चीज़ तो पता है ना, जो ट्रीज़ होते हैं दे यूज टू ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बिकॉज देर आर सो मेनी बर्ड्स विच आर हैविंग नेस्ट इन द ट्रीज। बर्ड्स ऐसे भी ट्रीज पर ही रहते हैं, एज यू नो देम वेरी वेल। दे आर द हाउस, ट्रीज आर द हाउसेज ऑफ द बर्ड्स, राइट। जैसे हम कहाँ रहते हैं, वी यूज टू लिव इन आवर होम, एंड इन द सेम वे द बर्ड्स यूज टू लिव ऑन द ट्रीज, राइट। सो वी कैन से दे आर द होम्स ऑफ द बर्ड्स। दे कॉल द रेन फॉर वेलकम शावर्स। जो ट्रीज होते हैं दे यूज टू कॉल द रेन। आपने सुना है ना, डोंट कट द ट्री, है ना। हमें हमेशा बचपन से हमें बताया जाता है दैट वी शुड नॉट कट द ट्रीज, बिकॉज इफ़ यू कट द ट्रीज देन द रेनफॉल विल बी रिड्यूस्ड, राइट, देन द पॉल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। तो ये जो ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं, रेनफॉल को लाते हैं। अगर इफ द रेन विल नॉट कम, then what will happen, there will be so many changes on the earth, है ना, and there will be, the earth will be unbalanced, right, because गर्मियाँ बढ़ेगी, हमें we will be having the lacks of water, हमें पानियों की कमी पड़ जाएगी, एंड देन हमें बहुत सारी ये जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको नुकसान होंगे, है ना। फ्रॉम वेयर विल गेट द फूड, हमें फूड कहाँ से मिलेगा अगर बारिश नहीं होगी तो। इन द सो दैट्स व्हाई हियर इट इज सेड दैट जो ट्रीज है ना, दे यूज टू कॉल द रेन, okay, they used to welcome the rain. I would like them to be my guardians. And here the poet is saying that I would like to be to make my guardians to whom? To the trees. Here the poet has shown so many regards to the trees, because the trees are of many uses. As you can see here in the last stanza, here there are many uses of the trees are mentioned here, right. That's why here the poet is saying that they are the guardians, all right, okay. So hope you would have understood this poem very well, okay. So children, today we have done this poem, all right. One more thing I would like to tell you children, that
if you like the way of my teaching and if the videos are helpful for you, if my all the videos are helpful for you, then do subscribe my channel and hit the like button so that I can also get motivated ना, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको और भी वीडियोज़ अवेलेबल करवा सकूँ ताकि आपकी स्टडीज़ ईजी हो जाए एंड हेल्पफुल हो आपकी स्टडीज़ में. ओके, सो हैव अ गुड डे. बाय बाय. थैंक यू.